Hello dear students, today in this video we are going to learn few applications of Biot-Savart's law. As we all know that in the previous video we had studied the formula of Biot-Savart's law. And what was the formula of Biot-Savart's law? I just want to remind you that formula was dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl sine theta upon r square. In this mu naught is basically permeability of free space. Means if a straight current carrying conductor is placed in the vacuum or air, then its penetration, the penetration power of magnetic field is determined by this physical quantity, and that is mu naught. So mu naught is permeability of free space. This law is very much similar with our Coulomb's law. In Coulomb's law also, we have seen several applications to find the electric field of a straight charged wire at any point P. So this is the first application which we are going to see in Biot-Savart's law. If we are having a straight current carrying conductor and we have to find the magnetic field at any given point P, then how we can determine the magnetic field of that particular point P with the help of Biot-Savart's law. And the second application which we are going to study is if a current carrying circular loop will be there, then how to determine its magnetic field at the center. This also we are going to see in today's video. So let's begin. The first application, that is magnetic field due to a long straight current carrying conductor. Suppose this is a straight current carrying conductor और बेटा इसके अंदर सपोज I अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है, मतलब इस पूरे वायर में I अमाउंट का करंट है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तभी डेवलप होगी जब आपके जो भी कंडक्टर होगा उस कंडक्टर में I अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा होगा. Suppose at any particular point P, and suppose this is that particular point P, I want to find the magnetic field. So what I have to do? सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना जो हमने सीखी थी बेटा, बिल्कुल वही काम हम यहाँ पर करके देखते हैं. तो डायरेक्शन हमने कैसे निकाली थी? हमने अपने थंब को, राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में प्लेस करना है और बाकी सारी की सारी फिंगर्स को किसकी तरफ पॉइंट करना है? बाकी सारी की सारी फिंगर्स को हमने इस पॉइंट P की तरफ प्लेस करना है. तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी मेरा पाम जिस भी डायरेक्शन में फेस कर रहा होगा, तो आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा बेटा, पाम इज फेसिंग in the inward direction. So the magnetic field at this point P, या इस वाली इस राइट साइड में, इस कंडक्टर के राइट साइड में कोई भी अगर पॉइंट होगा तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो आपको इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी. So what we had used the right hand thumb rule to determine the direction of magnetic field. Beta, there are several other rules by which we can find the direction of magnetic field, but only a single rule will help us to determine the मैग्नेटिक फील्ड. अगर आपको कोई और दूसरा रूल आता है, लाइक जो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से हम लोग जो डायरेक्शन निकालते थे, आप उस तरीके से भी डायरेक्शन निकाल सकते हैं, या फिर ये राइट हैंड थंब रूल यूज करके भी आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं. तो ये हमें डायरेक्शन पता चल गई. और एक बार जब हमें डायरेक्शन पता चल गई किसकी, कि हमारे जो भी पॉइंट P है उस पॉइंट P पर डायरेक्शन क्या होगी, तो हमने डायरेक्शन डिटरमाइन कर ली. इस P पॉइंट की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस कंडक्टर कुछ अज्यूम कर लेते, और वो डिस्टेंस मैंने मान ली सपोज A है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी नो दैट dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square. तो बेटा इन दिस केस आई तो हमें प्रोवाइड किया जाएगा क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो करंट मस्ट बी देयर इन द कंडक्टर. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए चार्ज होना चाहिए, जो भी हमारा कंडक्टर है वो कंडक्टर हमारा चार्ज होना चाहिए था, उसके ऊपर चार्ज रिसाइड करना चाहिए था. इन द सेम वे अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें करंट फ्लो होना चाहिए. अब यहां पर मुझे किसी भी तरीके से डीएल की वैल्यू मिल जाए, थीटा की वैल्यू मिल जाए और आर की वैल्यू मिल जाए, ये तीनों वैल्यूज अगर मुझे मिल जाएंगी
तो मैं मैग्नेटिक फील्ड बता पाऊंगा इस स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से। तो हमने क्या अज्यूम किया, सिंपल सी बात, सबसे पहला काम डीएल चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए, आई हैव टू अज्यूम अ करंट एलिमेंट, और वो जो करंट एलिमेंट है, वो करंट एलिमेंट सपोज मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, एंड दिस इज डीएल। और इस डीएल की लेंथ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट पी, ये हमने मान ली एल है, दिस डिस्टेंस इज एल। ये कितनी दूर है, एल डिस्टेंस दूर है। जब ये हमारा एल डिस्टेंस दूर है तो हमें देखो अब डीएल भी मिल गया बेटा। अब मुझे क्या चाहिए, थीटा चाहिए। तो थीटा क्या होता है, ये देखो ये हमारा डीएल एलिमेंट है, और इस डीएल एलिमेंट से इस पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो अगर मैं यहां पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं, ये हमारा आर हो गया। एंगल थीटा कौन सा हो जाएगा, दिस विल बी माई एंगल थीटा। क्लियर। तो अब मेरे पास थीटा भी है, डीएल भी है, और आर भी है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इस डीएल को चेंज कर दूं, मतलब अगर मैं यहां पर इस डीएल को अज्यूम कर रहा होता बेटा, और यहां से अगर कोई भी डिस्टेंस बना रहा होता, तो वो आर भी चेंज हो रहा होता, थीटा भी चेंज हो रहा है, और डीएल भी चेंज हो रहा है। मतलब इस कंडक्टर पर जितने भी एलिमेंट मैं सेलेक्ट करूंगा, उस हर एक एलिमेंट के लिए थीटा की वैल्यू भी चेंज होगी, आर भी चेंज होगा, डीएल भी चेंज होगा। मीन्स आई एम हैविंग 3 वेरिएबल्स बिकॉज all three are changing. If I am changing the current element, then theta is also changing, r is also changing. So to find the magnetic field due to this straight conductor, what I need is, I need all these three factors, all these three quantities in a single variable. So how can I convert all these quantities in a single variable? What I have done is, I am assuming this angle as phi, and see beta, if I'll change phi, अगर मान लीजिए मैं यहां पर ये दूसरा एलिमेंट अगर सेलेक्ट किया, और अगर मैंने फाई चेंज किया, तो डीएल भी चेंज हो गया, आर भी चेंज हो गया, थीटा भी चेंज होगा, तीनों चीजें चेंज होंगी। मतलब इन तीनों क्वांटिटीज को अगर मुझे एक सिंगल वेरिएबल में चेंज करना है, तो वो सिंगल वेरिएबल मेरे लिए फाई होगा। तो कैसे चेंज करेंगे, देखिएगा बेटा। फाई, अगर मैं यहां पर नाम दे दूं इसको सपोज मैंने यहां पर नाम दे दिया ओ, इसको ओ नाम दे देता हूं, इसको मैं क्यू नाम दे देता हूं। सो इन ट्राइंगल ओ क्यू पी, अगर मैं ऐसा लिखूं, तो सिंपल सी बात, थीटा प्लस फाई प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो थीटा विल बी 90 माइनस फाइव, और थीटा अगर 90 माइनस फाइव हो गया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा, दिस विल बी इक्वल टू साइन 90 minus 5. So this means sin theta will be equal to cos phi. Very simple. So theta तो हमने भैया चेंज कर लिया। तो फर्स्ट कंडीशन आ गई मेरे पास कि sin थीटा की जगह मैं उसको क्या लिखने वाला हूं, cos phi लिखने वाला हूं। अब मुझे r चाहिए, किसके टर्म्स में, phi के टर्म्स में। तो phi और r ये दोनों ही वेरिएबल होने चाहिए, बाकी जो भी चीज होनी चाहिए वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होनी चाहिए। तो फिर से मैंने वही ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल ओ क्यू पी। अगर मैं यहां पर cos phi लिखूंगा बेटा, तो cos phi will be a upon r. From here r will be equal to a upon cos phi. So what I can write, a sec phi. So here I got the value of r in terms of phi. यहां पर आपने cos phi ही क्यों यूज किया, बिकॉज अगर आप बेटा sin phi यूज करते तो ये l भी वेरिएबल हो जाता, phi वेरिएबल था ही, r भी वेरिएबल होता, मतलब वो जो रिलेशन आता वो 3 वेरिएबल्स में आता। लेकिन हमें रिलेशन किस में चाहिए, हमें रिलेशन r का रिलेशन हमें phi के टर्म्स में चाहिए, बाकी सारी की सारी चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए। इसलिए हमने यहां पर जो रिलेशन यूज किया वो हमने cos phi वाला रिलेशन यूज किया। सो दिस इज रिलेशन नंबर 2। अब यहीं पर अगर मुझे डीएल फाइंड करना है, तो डीएल फाइंड करने के लिए डीएल और फाई में रिलेशन चाहिए। तो मैं फाई और एल में अगर रिलेशन बनाने की कोशिश करूं, तो तीसरा रिलेशन यहां पर क्या हो जाएगा, दिस विल बी tan phi, एंड tan phi विल बी इक्वल टू perpendicular, this is L and base is A, so this will be L upon A.
ऐसा ही रिलेशन हमें देखने को मिलेगा। और अगर ये L अपॉन A आ गया तो L इज इक्वल टू A tan phi, but I want DL. So what I have to do is differentiating with respect to phi. So this will be dl upon d phi is equal to a sec square phi. So dl will be a sec square phi d phi. So it is very easy to identify all these three quantities in a single variable, that is phi. Now what I have to do is I have to just replace these values in our Biot-Savart's law. So this is equation 3. Use 1, 2 and 3 in Biot-Savart's law. What is that? dB is equal to mu naught upon 4 pi IDL sin theta upon r square. Replace this value. So this will be dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? a sec square phi d phi. sin theta की जगह क्या लिख सकते हैं? cos phi अपॉन r की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग? a स्क्वायर sec स्क्वायर phi. सो एक a से एक a कैंसिल हो गया, sec स्क्वायर phi से sec स्क्वायर phi कैंसिल हो गया, तो dB की जो वैल्यू आ गई, दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I cos phi d phi upon a. So dB will be mu naught upon 4 pi a I cos phi d phi. तो ये तो सिंपल डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई है, बट हमें तो इस पूरे के पूरे स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो अगर इस पूरे के पूरे स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो वो मैं कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ? देखिएगा, हम क्या करने वाले हैं, अब इस पूरे के पूरे कंडक्टर को एक पर्टिकुलर फाई से एक दूसरे फाई तक ये वेरी कर रहा है, तो मैंने यहाँ पर इसको क्या मान लिया? मैंने यहाँ पर इसको मान लिया एक पर्टिकुलर एंगल, और वो एंगल मैंने यहाँ पर माना सपोज phi 1 and this is phi 2. This is phi 2. तो ये पूरा का पूरा जो कंडक्टर है, वो कंडक्टर जो हमारा कवर हो रहा है, वो कहां से कहां कवर हो रहा है? phi 1 से लेकर phi 2 तक कवर हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, phi 1 नीचे वाला एंगल है, तो आई हैव टू टेक दिस एंगल एज नेगेटिव, तभी वो जो दूसरी वाली डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा, यानी कि मेरी जो लोअर लिमिट है वो माइनस phi 1 से प्लस phi 2 का इंटीग्रेशन होना चाहिए यहाँ पर। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट इट, और जैसे ही मैं यहाँ पर इंटीग्रेट करूंगा तो कहां से कहां करना है मुझे? माइनस phi 1 से phi 2 का इंटीग्रेशन। सो b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a cos phi का इंटीग्रेशन बचपन से पता है हमें प्लस ऑफ साइन phi होता है, लिमिट माइनस phi 1 टू phi 2, तो b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a साइन phi 2 अपर लिमिट माइनस साइन माइनस phi 1, और साइन माइनस phi 1 क्या होने वाला है? ये माइनस साइन phi होता है बेटा, मतलब साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो वही चीज हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, b इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a and this will be sin phi 2 minus minus it will become plus sin phi 1. तो सिंपल, अगर कोई भी एक स्ट्रेट कंडक्टर है और स्ट्रेट कंडक्टर एक पर्टिकुलर एंगल से एक पर्टिकुलर एंगल अगर वेरी कर रहा है, तो आप किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं
उसका हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया एंड एक्सप्रेशन इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। मतलब यहां पर अगर मान लीजिए कोई एक स्ट्रेट कंडक्टर होता और ये एक पर्टिकुलर पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने को बोलता, सपोज ये वाला एंगल आपको पता चल जाता है, सपोज 45, मतलब सपोज ये स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा। तो अगर इस स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो इट्स वेरी इजी कि अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस मुझे a/2 दे रखी है तो एक ही जगह पर मैं प्लेस कर दूंगा बेटा a/2, साइन फाई 1 की जगह पर 45 आ जाएगा, साइन फाई 2 की जगह पर भी 45 आएगा। यहां पर एंगल प्लेस करते टाइम पे अब आपको साइन नहीं देखना है, यू हैव टू डायरेक्टली प्लेस दी एंगल्स, जो भी आपके ऊपर और नीचे के जो भी एंगल होंगे उस लाइन से, जो भी परपेंडिकुलर लाइन आप फॉल करा रहे हैं, कहां से, करंट कैरिंग कंडक्टर से P पॉइंट पर, वहां पर जो भी दो एंगल्स बन रहे हैं वी हैव टू सी दोस टू एंगल्स एंड अकॉर्डिंग टू दोस एंगल्स विल बी एबल टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। सपोज यहीं पर एक स्पेशल केस होता, और वो स्पेशल केस क्या होता, स्पेशल केस अगर यही कंडक्टर इनफाइनाइटली लॉन्ग होता, केस नंबर 1, स्पेशल केस 1, इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर, अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग होता, सपोज दिस इज पॉइंट P, अगर इस P पॉइंट पर इस इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मुझसे अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा तो कैसे डिटरमाइन हो सकता है, दिस इज A, कोई भी चीज इनफाइनाइटली लॉन्ग होगी तो ऑब्वियस सी बात है कहीं पर भी खत्म नहीं हो रही होगी, यानी कि यहाँ पर ये जो एंगल मिल रहा होगा ये एंगल भी हमें π/2 आई मीन 90 डिग्री मिल रहा होगा, और नीचे की डायरेक्शन में भी ये एंगल कितना मिल रहा होगा, π/2 मिल रहा होगा, मतलब ये भी 90 मिल रहा होगा। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a and this will be sin 90 plus sin 90, very simple. So B will be equal to mu naught I upon 4 pi a, sin 90 is 1 and this is also 1, so this will be mu naught I upon 2 pi a. So this is the formula to find the magnetic field due to a infinitely long straight current carrying conductor. सेकेंड स्पेशल केस कि अगर मान लीजिए यही इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर होता और इसी इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर की वजह से अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती और पॉइंट P जो है वो मेरा इसके कंडक्टर के एक एंड के पास होता, दिस इज पॉइंट P। सो ऑब्वियसली इन अपवर्ड डायरेक्शन वी डू नॉट हैव एनी एंगल, दैट एंगल विल बी 0 डिग्री, ये ऊपर वाला जो एंगल होगा वो कैसा होगा, 0 डिग्री, बिकॉज ऊपर तो वायर ही नहीं है, और नीचे की डायरेक्शन में एंगल कितना बन रहा होगा, 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा। तो यहां पर फिर से आप वही फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, क्या फॉर्मूला, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन 0 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। तो अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है एंड पॉइंट P जो है आपका, दैट पॉइंट P इज lying near one of the end of the conductor, in that case your magnetic field will be mu naught I upon 4 pi a, क्योंकि ये 0 होगा और ये 1 होगा बेटा, so this will be the magnetic field. बाकी आप खुद समझदार हैं how to identify the magnetic field due to a straight current carrying conductor. So this was the first application of Biot-Savart's law and I hope कि ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी. Next we are moving to another application and that application is magnetic field at the center of a circular current loop. ये एक लूप है और इस लूप में किसी एक पर्टिकुलर जगह से करंट फ्लो करा रहे हैं हम, मतलब ये दोनों वायर बिल्कुल चिपके हुए हैं बेटा, बस पढ़ने के लिए हमने इनको अलग बना रखा है। यहां से सपोज ये करंट एंटर हुआ इस लूप में और यहां से ये बाहर निकला, तो I is entering from a particular point
इट इज लीविंग थ्रू दी वायर, मतलब ये बिल्कुल चिपके हुए हैं. इट इज लुकिंग लाइक अ सर्कुलर करंट लूप. What we have to find is, we have to find the magnetic field at the center of this circular current loop. How we can identify the magnetic field at its center? Again, we are dealing with the application of Biot-Savart's law. So Biot-Savart's law says dB is equal to mu naught I upon 4 pi I dl sin theta upon r square. तो सबसे पहला काम, वी हैव टू सेलेक्ट एन एलिमेंट एंड सपोज दिस इज माय एलिमेंट डीएल. अच्छा, डायरेक्शन क्या हो जाएगी? देखो, आई अमाउंट, आई जो है करंट वो मेरा इसी डायरेक्शन में है. राइट हैंड का थंब प्लेस कीजिए और बाकी सारी फिंगर्स मस्ट पॉइंट टुवर्ड्स दिस पॉइंट O. सो ऑब्वियसली द डायरेक्शन विल बी आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, और आउटवर्ड डायरेक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट किया करते हैं बेटा? डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. राइट हैंड के थंब को प्लेस कीजिए, सारी फिंगर्स को उस पॉइंट की तरफ पॉइंट कीजिए, सो यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो एट द सेंटर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटवर्ड. और एक बार अगर हमें डायरेक्शन पता चल गई, अब हमें मैग्नीट्यूड निकाल लेना है. तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सबसे पहला काम मुझे डीएल चाहिए. क्या चाहिए? डीएल. तो मैंने क्या काम किया? मैंने ये डीएल अज्यूम कर लिया बेटा. दिस इज डीएल. और इस डीएल से ये पॉइंट पी को ज्वाइन कराया. ये मेरे लिए एक तरीके से आर हो गया. तो डीएल और आर के बीच का एंगल कितना दिख रहा है? 90 डिग्री दिख रहा है. बस, बहुत ही आसान है अब तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करना. कैसे? dB will be equal to mu naught I upon 4 pi. dl तो dl ही रहेगा. एंगल साइन कितना आ गया? ये 90 डिग्री. अपॉन r की जगह पर क्या लिखेंगे? r. अगर इसकी रेडियस आप a मानते तो यहाँ पर a आ रहा होता बेटा. dB will be equal to mu naught I upon 4 pi r square. And this is dl. इसी का इंटीग्रेशन करना है. अब dl कहां से कहां तक वेरी होगा बेटा? 0 से 2 pi r तक. So b will be equal to mu naught I upon 4 pi r square into dl की जगह हम क्या रख सकते हैं? dl की जगह l हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन 0 से 2 pi r. So this will be mu naught I upon 4 pi r square into l की जगह पर 2 pi r. 2 pi से 2 pi कैंसिल आ गया, r से r कैंसिल हो गया. So b is mu naught I upon 2r. वेरी इजी. यहीं पर अगर ढेर सारे नंबर ऑफ टर्न्स होते, मतलब एक सर्कल के ऊपर ही दूसरा सर्कल, दूसरे सर्कल के ऊपर तीसरा सर्कल, तीसरे सर्कल के ऊपर चौथा सर्कल, तो सबकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आती वो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड ही आती. आउटवर्ड आती मतलब 0 डिग्री का एंगल बनता. सो इफ देयर आर कैपिटल N number of turns of circular current loop, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? B will be equal to mu naught Ni upon 2r. कुछ नहीं करना था, n से हम सीधा सीधा क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I अपॉन 2r, दूसरे वाले की वजह से भी इतनी होगी, तीसरे वाले की वजह से भी इतनी होगी, तो n टर्न्स होंगे. तो उन सब की वजह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को ऐड करेंगे तो मतलब वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड n टाइम्स हो जाएगी. यही अगर सर्कुलर करंट लूप की जगह पर अगर मुझे कोई आर्क दे दिया जाए, यानी कि अब इसमें स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस we are provided with a circular arc.
और इस आर्क में हमने क्या काम किया, करंट फ्लो कराया, हमने यहां पर करंट फ्लो कराया। तो दिस इज द आर्क सपोज ऑफ रेडियस आर, इसमें आई अमाउंट का करंट फ्लो कराया हमने, और ये जो एंगल बना रहा है ये आर्क, ये सपोज अल्फा बना रहा है, कितना एंगल, अल्फा। तो ऑब्वियसली इन दिस केस ऑल्सो हमें क्या काम करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो नाउ वी आर फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current carrying circular arc at its center, so dB is mu naught upon 4 pi IDL sin theta upon r square. This is the formula. तो अब कैसे आइडेंटिफाई कर लेंगे, देखिएगा यहां पर अब हमने क्या किया, एक एलिमेंट ले लिया हमने, और वो एलिमेंट हमारा क्या है, dl है। ऑब्वियसली इस एलिमेंट की डिस्टेंस जो है वो r ही है, मतलब मुझे r भी पता चल गया, मुझे dl भी पता चल गया। एंगल जो होगा वो ऑब्वियस सी बात है, ये dl बिल्कुल एक टेंजेंट की तरह काम कर रहा है बेटा, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री होता है। सो dB विल बी mu naught I upon 4 pi, no change will be there, but in place of dl will be there, and in place of theta angle will be 90 degree, in place of r it will remain r because we had assumed radius as r square. So dB will be equal to mu naught I upon 4 pi r square dl. Now what I have to do is I have to integrate, और इंटीग्रेशन जो होगा ये हमारा इस पूरे आर्क की लेंथ कितनी होगी, आर्क इज इक्वल टू क्या हुआ करता था फॉर्मूला, आर्क इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल, रेडियस इनटू एंगल। तो इसकी अगर लेंथ हमने L अज्यूम की है तो L विल बी इक्वल टू R इंटू अल्फा। The most important thing is alpha must be in रेडियन। अल्फा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो यहां पर लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से लेकर r अल्फा तक का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटू r अल्फा। r से r कैंसिल हो गया, तो यहां पर हमें b क्या मिला, b इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r इंटू अल्फा। तो अगर करंट कैरिंग आर्क की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालने को बोलेगा तो आई जस्ट नीड द एंगल ऑफ दैट आर्क, वो कितने का एंगल बन रहा है, मतलब 60 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का आर्क है, 120 डिग्री का आर्क है, कितने डिग्री का आर्क है। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है बेटा, दिस अल्फा मस्ट बी इन रेडियन। जब भी आप इस चीज को डिटरमाइन करें तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अल्फा आपका रेडियन में होना चाहिए। So for in this video, we have seen 2 applications of Biot-Savart's law. The rest we'll see in the next video. Thank you so much. God bless you. Stay fit, stay healthy, beta.